में, देखो कितना टाइम गया मेरा, 10 मिनट गया. ओके, आई फॉरगॉट रिकॉर्डिंग. This is what happens. I go on teaching, I forget only. So I forgot recording. 10 minutes pass. So this is distinction. You have to make a distinction between. Is it clear? Only on the 6 points, this distinction between functional and divisional you have to do. After this, you have studied. That is 1 minute. The next is formation. Formation. That is organization कैसे form होता है. Formal organization. Organization कैसे form होता है. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका तो मीनिंग आप लोगों को आराम से मैंने बताया. आपके यूनिफॉर्म के हिसाब से यू हैव टू कम टू द कॉलेज टुमारो विथ फॉर्मल यूनिफॉर्म, फॉर्मल ड्रेस. ऐसे बोलने से पता है तुमको किससे आना है. एकदम शर्ट ट्राउजर पहन के एकदम सिस्टमेटिक, वेल डिफाइंड है ना. फॉर्मल. व्हाट इज फॉर्मल? नथिंग बट अ वेल डिफाइंड सिस्टम वेयर everybody knows what is my position, what is my authority, what is my responsibility, what are the principles, what is the process. Everything is systematically defined. यहाँ पर सब इस तरह के कंपनीज में सब कुछ सिस्टमेटिकली बनाया है, क्योंकि उस कंपनी ने वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है. वाई? बिकॉज दे आर गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस. कैसे भी नहीं चलता वैसे कंपनीज में. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, formal, everything is set, well defined. The responsibility, the authority, the process, the principles, the position. कौन क्या पोस्ट में है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका पावर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, मेरे प्रिंसिपल्स कंपनी के क्या है, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है कंपनी, उस हिसाब से चलना पड़ता है. और ये हु इज डन, बिकॉज क्यों चाहिए ये सब, क्योंकि हमको मालूम है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसके लिए अगर वो सिस्टमेटिकली चलना है, if administration has to be systematic, then it has to be a formal organization. All these things have to be followed. If there is no rules and regulations, then you know what will be the position of the company. अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता तो क्या होगा, कंपनी ढंग से नहीं चलेगी. वैसे चाहे स्कूल्स हो, कॉलेज हो, हर जगह एकदम एक सिस्टम, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए. इफ यू वांट द कंपनी टू रन स्मूथली, administration, why? Because the objective of the company has to be accomplished, the task what you have taken has to be fulfilled. नहीं तो क्या होगा, कंपनी ऐसे ही चलता रहेगा तो ना ताड़ तंत्र, फिर कोई फायदा नहीं है उसका. तो इसलिए it has to be following all the rules and regulations it is governed by. And who makes these rules and regulations for this organizational structure? This is designed by the management, top management. जो मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोग हैं वो लोग ये सारा डिजाइन करते हैं ये सब रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि दे वांट दैट द सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी शुड फुलफिल्ड. दिस इज द meaning of formal organization. Then under formal organizations we studied what? The features. इसके features क्या है वो भी पढ़ा पिछले क्लास में हमने. Yes or no? So we understood what are the features. Different features are there. We know that the specific relationship, because everybody knows, when we know my position, what I am, what is my authority, what is my specific among the job, because हर किसी को मालूम है अपना क्या जिम्मेदारी, अपना क्या पोस्ट है, the nature of work that is there. So क्या होता है, interrelationship सही तरीके से होता है. फिर this clarifies who has to do what and to whom I must report. When I am specific with my work, my responsibilities and my authority, then I know what is my job. I am very clear with my things and I know to whom I am supposed to answer, whom I am supposed to report. These are the features. Then दूसरा क्या आता है, active. तो क्यों ये सब है? Because we know we have to achieve the objective. So the specified plans are there, and according to that, when I know what I am supposed to do, then I know I have to follow the rules and regulations which are essential for the achievement of the company, for objective accomplishment. Then तीसरा, efforts of various departments are coordinated. So क्या होता है, हर एक department का coordination होता है. वह formal में, because they are following all the systematic way and all rules and regulations are followed. So naturally various departments are interlinked, coordinated, integrated through formal organization. Because हर किसी को मालूम है हम लोगों को सीधे एकदम systematically well defined way से और क्या
with following the rules and regulations we have to do means naturally हर एक department interlinked होता है, integrated होता है और systematically काम चलता है. Then this is designed by the top management because why they know if we have to achieve the goal then we have to follow this all things for the smooth functioning of the company. This is the features. Then we studied what is the definition also of formal. I told you definition by Louis Allen, what he says about formal organization. Then what are the advantages I talked about. Then what are the disadvantages we talked about. So after this definition we understood, then we understood the advantages and disadvantages also. Okay. This is what we have studied in last class, formal. Then we went to informal organization. So then formal organization का मैंने चार्ट भी बताया था आपको. चार्ट कैसा है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कैसा है? एमडी है, देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैंने बताया था कैसे 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 डिपार्टमेंट. फॉर्मल मीन्स कैसे सिस्टमेटिकली बना रहता है. परचेज मैनेजर, देन परचेज मैनेजर, देन प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. देखो सिस्टमेटिक होता है कैसे. एक चार्ट है, हायरार्की है. फाइनेंस मैनेजर के नीचे, परचेज मैनेजर के नीचे परचेज एग्जीक्यूटिव रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रहेगा, फाइनेंस मैनेजर के नीचे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रहेगा. नीचे का मुझे लगता है दिख नहीं रहा है, कैमरा उन्होंने उधर ऊपर फिक्स किया है. फिर आफ्टर परचेज एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, देन एम्प्लॉय. कैसे एक सिस्टम है देखो. This is the chart in your textbook also, you will get that. Okay, so this is how formal means एकदम well defined systematic. MD के बाद किसका responsibility, किसकी authority है? परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर के बाद कौन? परचेज एग्जीक्यूटिव. परचेज एग्जीक्यूटिव बाद उसका सुपरवाइजर. उसके बाद कौन? एम्प्लॉइज. लाइक दैट. प्रोडक्शन मैनेजर के बाद कौन? प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव. फिर कौन? उसका सुपरवाइजर. कैसे देखो फॉर्मल में एकदम वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक. हर किसी का पोजीशन क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करना है, ये सिस्टमेटिकली चलता है फॉर्मल में. इज इट क्लियर? लक्ष्मी, अभिषेक एंड ऑल. हेलो. यस मैम. अच्छा ठीक है. ये फॉर्मल. फॉर्मल में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलता है. इनफॉर्मल में भी ये सब कुछ है, समझ रहे हो. इनफॉर्मल में कंपनी आल्सो, ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैज गॉट दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली. उसमें भी ये एमडी होता है, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके नीचे सब लोग हैं. मगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसा होता है? अभी इसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम मीन्स किसके बाद किसकी पोजीशन है, कौन किसको बताना है. एमडी के बाद एमडी किसको ऑर्डर देगा? मैनेजर को देगा. मैनेजर किसको ऑर्डर देगा? एग्जीक्यूटिव को देगा. एग्जीक्यूटिव किसको देगा? सुपरवाइजर को देगा. सुपरवाइजर किसको देगा? अपने एम्प्लॉइज को देगा. तो कैसे ढंग से चल रहा है कि नहीं? एम्प्लॉइज को अगर कुछ बताना है तो एम्प्लॉइज डायरेक्टली एमडी को बोल सकते हैं क्या फॉर्मल में? लक्ष्मी, अभिषेक, मिताली, कैन द एम्प्लॉय डायरेक्टली टेल द एमडी इन फॉर्मल? नो मैम. एमडी को एम्प्लॉय को बताना है तो एम्प्लॉय हैज टू टेल किसको? सुपरवाइजर को. सुपरवाइजर किसको बोलना है? एग्जीक्यूटिव को. एग्जीक्यूटिव किसको बोलेगा? मैनेजर. देन मैनेजर विल रिपोर्ट टू एमडी. एक सिस्टम, एक तरीका कम्युनिकेशन का काम करने का रहता है. रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं फॉर्मल में. वही उसका अपोजिट होता है इनफॉर्मल में. इनफॉर्मल इज व्हाट? द अपोजिट ऑफ द इनफॉर्मल इज एस्टैब्लिश्ड नॉट बाय एनी फॉर्मल अथॉरिटी. मीन्स यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते. ओके, समझ में आया? यहाँ पर जो होता है वो उसमें नहीं होता. यहाँ पर भी दिस स्ट्रक्चर इज सेम. इनफॉर्मल में भी स्ट्रक्चर सेम है. एक एमडी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, इसको भी एग्जीक्यूटिव, इसको भी एग्जीक्यूटिव, इसको भी एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर भी सुपरवाइजर. मगर कम्युनिकेशन का लिंक कैसा होता है? जैसे एमडी को कुछ बताना है तो किसको बोल सकता है इनफॉर्मल में? एमडी कैन डायरेक्टली टेल टू एनी डिपार्टमेंट, एनी पर्सन. अगर उसका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ अच्छा है, एमडी का रिलेशनशिप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के साथ अच्छा है तो वो सीधा डायरेक्टली उसके साथ बात कर सकता है. या एमडी का सुपरवाइजर ऑफ परचेज वाले के साथ अच्छा है, वो उसके साथ बात सकता है. इस इधर का सुपरवाइजर फाइनेंस मैनेजर के साथ. मीन्स यहाँ पर क्या है? दिस स्ट्रक्चर is originating from the formal organization only.
तो what happens is here formal organization से this structure is originating, but here they do not follow any authority like formal organization. यहाँ पर कोई अथॉरिटी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड गवर्नड नहीं है, यहाँ पर कोई कुछ फॉलो नहीं करते. यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सोशल रिलेशनशिप. किसका संबंध किसके साथ अच्छा है, किसका इमोशंस किसके साथ अच्छा है, रिलेशनशिप किसके साथ अच्छे हैं, उस बेसिस पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम चलता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रोसीजर्स और एनी रेगुलेशंस, बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सोशल नेटवर्क, पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल रिलेशन, इमोशन. अपना अपना निजी जिसके साथ रिश्ता कैसा है उस हिसाब से यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है. इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फॉर्मल, बट rules and regulations are not followed. The communication is based on the internal relationship what one shares with other, social relationship for the network what one shares with other, for your emotions that are attached. यहाँ पर रिश्ते से ज़्यादा काम चलता है. अभी इसका अच्छा है, सुपरवाइजर का अच्छा है, प्रोडक्शन वाले का, वो सीधा जाके फाइनेंस मैनेजर को बोल सकता है, क्योंकि वो बोलेगा मेरा उसके साथ अच्छा है भाई, मेरे को जो बोलना है मैं उसको बोलूँगा, मैं आपको नहीं बोलूँगा, तुम मेरे होंगे प्रोडक्शन मैनेजर. मीन्स लाइक यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता, इसलिए उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कोई प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड. इज इट क्लियर? This is what we studied in last class. Then we studied after this the definition of informal by Keith Davis. Okay, so definition of informal we studied. Then we studied what is that features of informal. ये भी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में, features of informal. Then advantages and disadvantages ना लास्ट क्लास में अभिषेक, advantages and डिसएडवांटेजेस भी पढ़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में. करेक्ट लक्ष्मी? मिताली? Yes, ma'am. हाँ. देन वी स्टडीड इवन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसमें भी हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिस्टिंक्शन पढ़ाई किया. डिस्टिंक्शन कंपैरेटिव स्टडी मीन्स क्या इसमें और इसमें क्या फ़र्क है हमने पढ़ाई किया. तो पहला मीनिंग इज फर्स्ट पॉइंट फॉर डिस्टिंक्शन वाज मीनिंग. तो हमको मीनिंग मालूम है. व्हाट इज फॉर्मल? इट इज़ अ वेल डिफाइंड सिस्टम where all the authority, position, responsibilities, principles, process is set, well defined, and there are rules and regulations. The organization is governed by rules and regulations. And why? Because there should be a smooth functioning of the organization, and this is being designed by the top management, by the management. What about informal? Informal is originating from the formal, but here there are no set rules and regulations. Procedures are not followed. It is based on social network, the relationship that they share. It is the emotions and attitudes that are attached to the people. According to that, it goes on. पहला meaning पर हो गया, ठीक है? Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन. ओरिजिन कहाँ से आता है? सो यहाँ इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द, अभी ये फॉर्मल कहाँ से आया? फॉर्मल आया जहाँ से, बिकॉज कंपनी में मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में इट इज ओरिजिनेटिंग बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर्मल क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने ऐसे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, कंपनी का ओरिजिनली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस वजह से वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया. This is the origin. What about informal? It is arising because of social interaction. यहाँ पर क्या है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी ने बनाया नहीं है, यहाँ पर इनका अपना निजी सोशल रिलेशनशिप की वजह से, बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन दिस इज फॉर्म्ड. ये ओरिजिन. तीसरा पॉइंट है अथॉरिटी. डिस्टिंक्शन के लिए तीसरा पॉइंट है अथॉरिटी. व्हाट इज द अथॉरिटी इन फॉर्मल एंड व्हाट इज द अथॉरिटी इन इनफॉर्मल? अथॉरिटी क्या है? इट अराइजेस आउट ऑफ द पोजीशन. यहाँ भी फॉर्मल में अथॉरिटी क्या है? मेरा पोजीशन क्या है? अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, दैट इज माई अथॉरिटी. बिकॉज ऑफ दैट द एग्जीक्यूटिव हैज टू लिसन टू मी. एग्जीक्यूटिव से बिकॉज ऑफ माई पोजीशन द सुपरवाइजर हैज टू लिसन टू मी. सो दिस अथॉरिटी, हाउ इट फ्लोज? सो द अथॉरिटी इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन इन द मैनेजमेंट दैट दे होल्ड इन फॉर्मल. एंड व्हाट अबाउट इन फॉर्मल में है जो पोजीशन मुझे दिया गया उस हिसाब से वो फ्लो होता है.
व्हाट अबाउट इनफॉर्मल में अथॉरिटी, देयर इज नो सेट बिहेवियरल पैटर्न। यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने बोला ना कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, किसी को अथॉरिटी किसी का नहीं है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगा, कोई एग्जीक्यूटिव, मेरे को नहीं। इवन एम्प्लॉय में टॉक टू एमडी, एमडी में टॉक टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टॉक टू मैनेजर, मैनेजर में टॉक टू एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर देयर इज नो सेट बिहेवियरल पैटर्न। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है अभी? चौथा पॉइंट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स किसने किसको बताना है, कैसे होता है कम्युनिकेशन, हाँ, किसकी अथॉरिटी है, किसने किसको बोलना चाहिए। फॉर्मल में कैसे है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस टू स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स क्या, ऊपर से नीचे, बराबर। स्केलर चेन कैसा होता है, एमडी किसको ऑर्डर करेगा, मैनेजर को, मैनेजर किसको ऑर्डर करेगा, एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव किसको ऑर्डर करेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको ऑर्डर करेगा, एम्प्लॉय को। देखो फॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो होता है, स्केलर चेन, दैट हायरार्की, ओके, स्केलर चेन फॉलो होता है। सो व्हाट इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन, ऊपर से नीचे हायरार्की है, सिस्टम है। और व्हाट अबाउट इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ प्लान्ड रूट, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पर इट कैन, इनफॉर्मल में क्या, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। कोई किसको बोल रहा है, कोई किसको बोल रहा है, कोई किसको बोल रहा है, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा किसी को भी बोल रहा है, इट इज इन अ scattered way, anybody can speak to anybody. So here flow of communication is not through a planned route. यहाँ पर कैसे planned route है, systematic, MD ने मैनेजर को बोलना है, मैनेजर ने सुपर एग्जीक्यूटिव को बोलना है, एग्जीक्यूटिव ने सुपरवाइजर को, एम्प्लॉय। यहाँ पर कोई प्लान्ड रूट ही नहीं है ऑफ कम्युनिकेशन, कोई किसी को भी बोल रहा है, कोई भी किसी को बात कर रहा है। यहाँ पर देयर इज नो प्लान्ड रूट, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, कोई किसी से कैसे भी क्या भी। इज इट क्लियर? देन नेचर, फिफ्थ पॉइंट इज नेचर, NATUR, ठीक है। सो नेचर, नेचर इज, यहाँ पर कैसा है, स्ट्रिक्ट है, रिजिड है। यहाँ पर कैसे स्ट्रिक्ट है, किसने किसको बोलना है, एमडी सीधा एम्प्लॉय से नहीं बात कर सकता, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, you have to follow the hierarchy, you have to follow the scalar chain, it has to go in a system. So यहाँ पर कैसा है, nature is very rigid। यहाँ पर कैसा है, अभी बोलो, यहाँ पर कैसा है, इनफॉर्मल में कैसा है, रिजिड है क्या फ्लेक्सिबल है? लक्ष्मी, अभिषेक, मिताली, इनफॉर्मल में कैसा है? Ma'am, informal he can give the information to anybody. हाँ, रिजिड का अपोजिट क्या है? Flexible. फ्लेक्सिबल है कि नहीं? तो यहाँ पर रिजिड है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट, वी हैव टू फॉलो सिस्टम, यहाँ पर फ्लेक्सिबल। सो व्हाट इज द नेचर, यहाँ इन फॉर्मल इट इज रिजिड, इन इनफॉर्मल इट इज फ्लेक्सिबल। सो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज लीडरशिप। सिक्स्थ पॉइंट क्या है डिस्टिंक्शन के लिए, लीडरशिप। यहाँ पर कैसा है लीडरशिप, इधर कैसा होता है फॉर्मल में, यस, मैनेजर इज द लीडर, क्योंकि ही इज द टॉप, एमडी के बाद मैनेजर ही है जो सब कुछ संभालता है। सो मैनेजर्स आर लीडर्स, वेयर, इन फॉर्मल में, फॉर्मल। व्हाट अबाउट इनफॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आर द लीडर्स। व्हाट अबाउट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में लीडर्स मे और मे नॉट बी देयर, क्योंकि कोई किसी के साथ बात कर रहा है तो कौन लीडर है, क्या लीडर है, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। सो लीडर्स मे और मे नॉट बी देयर, दे आर चूजन बाय ग्रुप्स। अभी इधर का एक बंदे का अच्छा है, इधर के एक बंदे का अच्छा है, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से बातचीत होता है। तो यहाँ पर लीडर्स मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन अबाउट लीडरशिप अंडर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्टिंक्शन में। तो यहाँ पर भी 6 पॉइंट्स फॉर डिस्टिंक्शन है। एंड फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसके बाद हमने वहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो पहले पढ़ चुके हैं। नाउ वी लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद डेलीगेशन। डेलीगेशन, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। डेलीगेशन मीन्स क्या, मेरा आई एम अथॉराइजिंग समबडी एल्स टू डू, मैं सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा पावर दे रही हूँ काम करने के। लास्ट क्लास आई डिड
What did I do? Last class I told. In my absence, I will delegate my power to whom? To Abhishek, because he is the leader of the class. I feel ki he can manage the class. When I feel, then I will delegate some power to. In my absence, Abhishek, hello? Anything? Anybody has got to say? Lakshmi? Hello? Lakshmi's link got cut, I think. She is not there somewhere. Anyway, Abhishek, Mithali? Yes, ma'am. You all are there? मिथाली येस मॅम. तर डेलिगेशन मध्ये काय असते, आता मी जर क्लासला आज येत नसलो किंवा मी काहीतरी बिझी असलो तर मी कुणाला एक माझा अधिकार कुणाला देणार, क्लासमधले कोणतरी एक लीडर आहे जो सगळं सांभाळू शकतो, तर मी काय करतो, माझं पॉवर डेलिगेट करतो त्यांना. अभिषेक तू आज क्लास सांभाळ, माझ्या गैरहजेरीमध्ये तू बघ की सगळं व्यवस्थित चाललं पाहिजे. डेलिगेशन रेफर्स टू डाऊनवर्ड ट्रान्सफर. मी वरती आहे, माझ्यानंतर नेक्स्ट कुणाला मी पॉवर दिलो, क्लास मॉनिटर किंवा क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, आय एम डेलिगेटिंग रेफरी द डाऊनवर्ड ट्रान्सफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपिरियर टू सबऑर्डिनेट. आता मी क्लासला टीचर, आय एम द टीचर. आफ्टर मी होम इन माय एब्सेंस आय एम गिविंग ट्रांसफरिंग माय पावर टू अभिषेक. ओके, सो इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर, ये क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर एक कंपनी का फंक्शनिंग अच्छे से होना है, अगर समझो कोई एक बंदा ऑफिसर नहीं है तो कंपनी बंद पड़ेगा क्या? है, अधिकारामध्ये असणारा एखाद ऑफिसर एक दिवशी कंपनीला आला नाही तर कंपनी बंद पडते का मिताली? नो मॅम. नाही, है की नाही? देन व्हॉट हॅज टू बी डन? इफ ही इज नॉट देयर, त्याच्यानंतरचं कोण आहे त्याला पॉवर मिळाला, ते त्यानं अधिकार घेतलं पाहिजे, त्यांनी पुढचं काम केलं पाहिजे. तसं असते डेलिगेशन. म्हणजे का, हे फार जरुरी आहे कुठल्याही कंपनीमध्ये. सो इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन. ओके, what will happen if this is there? It will help their managers to use the time with high priority. मग काय होते, वेळेचा सदुपयोग करून व्यवस्थितपणे सगळे आपले कंपनीचे ॲक्टिव्हिटीज व्यवस्थितपणे पार पडू शकतात. ठीक आहे. देन इट ऑल्सो सॅटिस्फाईज द मग मी अधिकार कुणाला दिल्यामुळे, मैंने ये मेरा अधिकार मेरे एब्सेंस में अभिषेक को मैंने दिया, इसलिए अभिषेक को खुशी होती है. Abhishek is satisfied. It satisfies the subordinates' need for recognition. Now, Abhishek will feel happy, proud. Oh, see, in my absence, madam has got that much confidence in me. She has delegated or transferred that power to me. So he's motivated. He gets a recognition. Everybody will say, oh, in absence of madam, Abhishek is given that power. So he gets that recognition. है ना? पहचान मिलती है कि नहीं अभिषेक? Yes, ma'am. हाँ, तो दिस recognition, so he is satisfied. The satisfaction of the subordinate is very important. Then this is needed for recognition. क्योंकि देखो कोई बंदा अच्छा है उसको भी recognition मिलनी चाहिए. This will provide them opportunities. उनको एक क्या मिलता है, opportunity मिलती है अपने आप को डेवलप करने के. ऐसे चलते चलते अभिषेक एक दिन बड़ा लीडर बन सकता है. आज क्लास का लीडर बना है मैडम के बाद, तो वैसे और बाहर जाके और कहीं भी, मिथाली को अगर मैं बताती हूँ, मिथाली को भी थोड़ा सा भरोसा आता है, मोटिवेट होती है, खुशी होती है, रिकग्निशन मिलते हैं. आगे चल के वो भी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी देते हैं तो मैं बहुत खुशी से करूँगी. ऐसे करते करते उसमें भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अच्छे से काम करते हैं, कि नहीं? दिस इज व्हाट इज आई टॉट द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन. इज इट क्लियर मिताली एंड अभिषेक? लक्ष्मी, आई डोंट नो व्हाट लाइन, Yes, ma'am. शी इज नॉट. Yes, इज ma'am. इट क्लियर? ओके. देन डेफिनेशन. आता ये मीनिंग हो गया, ठीक है, डेलीगेशन का. अभी डेफिनेशन भी शायद मैंने बोला था लास्ट क्लास में. डेलीगेशन का डेफिनेशन क्या है? थियो हेमन has defined as it is, you must write. Even I cannot change, so I will not tell my own. Whatever he has said, I will. Theo Heman has defined delegation as delegation of authority means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limit. तो क्या है, उन्होंने क्या बोला, जो मैंने बोला वही बोला, मगर अपने एक हिसाब से बराबर अच्छे से बताया है. तो क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट. मीन्स उसको अथॉरिटी हम दे रहे हैं अपना काम करने के लिए, कहाँ पर, जितना उसको मैंने लिमिट दिया है उस लिमिट के प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही करना है. बाद में वी स्टडीड व्हाट आर द एलिमेंट्स. आता है डेलीगेशन में क्या क्या आता है, एलिमेंट्स और एसेंशियल्स, क्या क्या जरूरत है. डेलीगेशन मीन्स व्हाट, मैं पहले क्या करती हूँ, मैं उसको
जिम्मेदारी मैं अथॉरिटी दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ अभिषेक को? अथॉरिटी। अभिषेक ऐसे ही कर सकता कि मेरे एब्सेंस में कुछ भी काम आगे चल के मेरी जगह आके? नहीं, जब तक मैं उसको अथॉरिटी नहीं देती तब तक वो नहीं आ सकता है ना। येस और नो अभिषेक? मिताली, जोपर्यंत Yes, ती ma'am. जिम्मेदारी तुम्हाला देत नाही ती तो हक्क मी देत नाही तोपर्यंत तुम्ही येऊ शकता काय? मग ते पहिला काय पाहिजे त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स? पहले क्या चाहिए उसमें? अथॉरिटी चाहिए। बाद में दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी को वैरे गैरे नत्तू खैरे को नहीं दे सकती हूँ अथॉरिटी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है की नाही? मग कुणाला मी हे हक्क देऊ शकतो? ज्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे काम करायचं, जो अगदी व्यवस्थितपणे सक्षमपणे काम करू शकतोय, ज्याला मी अधिकार दिल्यानंतर त्याच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी पाहिजे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तिसरं अकाउंटेबिलिटी। मैंने अगर when I say Abhishek you do this but Abhishek is accountable to me or no? मेरे एब्सेंस में Yes, अभिषेक ने ma'am. क्या क्या किया, कल को मैं पूछने के बाद अभिषेक ने बताना है मैडम आप नहीं थे, मैंने ये किया ये नहीं किया। हु इज अकाउंटेबल? यू हैव टू बी आंसरेबल। नो, अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आंसरेबल आल्सो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन एसेंशियल्स हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या अथॉरिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या है। पहला व्हाट इज अथॉरिटी विल अंडरस्टैंड। ओके, पहले क्या है अथॉरिटी का मतलब समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अथॉरिटी। So first we'll start with authority. What is authority? Very simple, already you know I told. Authority refers to the right to an individual. So now what is that right to an individual? I was there in my absence, I gave that right to that individual. Who is that individual? Abhishek. In right to the individual to command. क्या है? It is a authority, that is what it means. It is a right to an individual to command his subordinates or to take action within the scope of his position. मेरे गैर हाजिरी में किसको हक मिला? अभिषेक को। हक किस लिए? कि वो उसके नीचे कौन है, बाकी के स्टूडेंट्स के ऊपर अपना हक जमा सके, कोई एक्शन ले सके, कुछ काम करवा सके। वो उसको मैंने जितना हक दिया उतना ही हक का यूज इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ सेकेंड ईयर पीयूसी कॉमर्स बिजनेस स्टडी क्लास के लिए बोला अथॉरिटी। किसको? अभिषेक को। अगर अभिषेक जाके साइंस वाले पीयूसी सेकेंड ईयर वालों को अपना अधिकार चलाएगा तो चलता है क्या अभिषेक? मिताली? No, ma'am. मिताली? No, ma'am. मिताली? मिताली ऐकते का मिताली? Yes, ma'am. हां, तर अथॉरिटी कुणाला दिलं जाते? ज्याला दिलं जाते तो त्याला अधिकार दिल्यानंतर तो हक्क तो काय? तो आपला हक्क वापर केला पाहिजे आपल्या खाली जे लोक आहेत त्यांच्याबरोबर कामं करून घ्यायसाठी। ते पण केवढं? जेवढं त्याला मी अधिकार दिलो तेवढाच। आता मी पीयूसी सेकंड ईयर कॉमर्सच्या क्लासपुरते अधिकार दिलो, तो जाऊन सायन्सच्या सेकंड ईयरच्या पीयूसी क्लासवर अधिकार गाजवला चालतं का? मिताली? मिताली? हेलो, आर यू हियरिंग मी मिताली? ठीक है, इज इट क्लियर अभिषेक? Okay. Yes, ma'am. The concept of authority, this concept of authority arise, कहाँ पर देखते हो तुम ऐसे authority? एक सिस्टम एक के बाद नेक्स्ट के बाद कहाँ पर दिखाई देता है तुमको? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ पर रहता है ये अथॉरिटी, किससे किसको आना है, कहाँ पर देखा आपने? स्केलर चेन में देखा कि नहीं? Yes, ma'am. है ना, जहां पर एक सिस्टम है। एमडी के बाद कौन? मैनेजर, मैनेजर के बाद कौन? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, है ना। इसे दिस concept of authority arises from where? From the established scalar chain. यहाँ से आता है जहाँ पर एक सिस्टम चलता है वहाँ पर which links the various job positions and levels of organization. तो अगर मैं नहीं हूँ, मेरे बाद अभिषेक मैनेजर है तो अभिषेक को जाएगा स्कोप,
He will have to command the right and get the activities done with having his position, but the limited position, जितना हक दिया उतने तक का ही. So this is followed in scalar chain. This is followed in the links where different job positions are there in the levels of different organizations. This authority flows from top to bottom, that is from the superior to the subordinates. The from where it flows, from top to bottom आता है ये authority, from the superior to the subordinates. This is the meaning of authority. Is it clear? समझ Yes, में ma'am. आया मिथाली? ऐकली का मिथाली? Second is responsibility. Second is responsibility. अभी responsibility क्या है? जिम्मेदारी. Responsibility क्या है? Duty. मैंने अभिषेक को एक अधिकार देने के बाद चुप बैठने से होता है क्या अभिषेक? It becomes your No, ma'am. responsibility. हाँ, तुम्हारी ड्यूटी बनती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, मैडम ने मेरे को ये काम दे के गया बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट? आई एम बाउंड. ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है. तो व्हाट इज दैट? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट. मैंने अभिषेक को बोला तो अभिषेक ने क्या करना है? बहुत जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विथ लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, ही इज बाउंड टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. जो भी मैंने काम उसको असाइन किया, इट बिकम्स हिज ऑब्लिगेशन, हिज ड्यूटी टू सी दैट ही परफॉर्म्स इट वेल. इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ऊपर एमडी ने तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को आता है. इट इज बाउंड, ही इज बाउंड टू परफॉर्म the assigned duty from what he's got from his superior. It becomes his duty. So thus the responsibility follows. What responsibility? Thus the responsibility flows upwards. That is a, अभी पहला अथॉरिटी कहाँ से आया? ऊपर से नीचे आया, बराबर. एमडी ने मैनेजर को दिया, बाद में सुपरवाइजर को दिया, एग्जीक्यूटिव को दिया, सुपर. तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे है. अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं अभिषेक है यहाँ पर, क्या है? एग्जीक्यूटिव है. अभी इसकी जिम्मेदारी है, इसने क्या करना है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के बाद हाउ इट गोज? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स. अभी इसका काम क्या है? मैंने काम किया, अभी मैं किसको रिपोर्ट करना चाहिए? तो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैंने जिम्मेदारी दी वो अपना काम करके ऊपर बताना है. तो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, ऊपर के डायरेक्शन में जाता है. सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू कूम. अगर यहाँ पर हो तो किसको रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉई. एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? सुपरवाइजर. सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? मैनेजर. मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? एमडी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जाता है? डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है. इट गोज अपवर्ड डायरेक्शन में. अथॉरिटी कैसे फ्लो होता है? ऊपर से नीचे आता है. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. हाँ, अथॉरिटी कम्स डाउन. ऊपर वाला दूसरे को बोलता है, दूसरे वाला तीसरे को, नीचे की तरफ आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस. एंड तीसरा इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबल. अपने मैंने जिम्मेदारी दे दी, फिर वो कर्तव्य से काम कर रहे हैं, अभी ठीक से किया नहीं किया, उसका जवाब कौन देगा? अभिषेक देगा. सो ही इज अकाउंटेबल, इज आंसरेबल. यस और नो? अकाउंटेबिलिटी implies being answerable for the final outcome. जो काम दिया था वो ढंग से किया, नहीं किया, सही किया, गलत किया, कितना नहीं किया, ये सारा आउटकम को आंसर कौन करेगा? जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उसने. वो ही इज आंसरेबल फॉर द टोटल आउटकम, फाइनल आउटकम. वंस द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड and responsibility is accepted. अथॉरिटी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद इट कैनॉट बी सेड दैट द सबऑर्डिनेट विल बी फ्री. ही इज अकाउंटेबल. उसने आंसर भी देना है. ही इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क. तो अथॉरिटी दे दिया, अभिषेक ने ले लिया, एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर ऑल्सो, वेदर ही हैज अकम्प्लिश्ड द वर्क गिवन टू हिम.
This is the meaning of authority, responsibility and accountability. Is it clear? Okay, is it clear? Yes, ma'am. Then authority, see it says that authority is delegated, responsibility is assumed. Authority is delegated, दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम किया, मैंने ले लिया है, एंड कंक्लूजन क्या है, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड. अब भी मेरे ऊपर हो क्या है, इम्पोज किया है, अभी मैं जवाब देना है उसको. सो authority is delegated. Imposed. Delegated. Responsibility is assumed, accepted, and accountability is imposed. तुम पर लादा गया है, तुमको दिया है तो तुम जवाब देना है. Is it clear? So the conclusion is authority is delegated, responsibility is assumed, and accountability is imposed. This is the conclusion of the delegations 3 elements. Is it clear? अभी इसमें distinction है. अभी distinction क्या है? अभी distinction, ये तीनों का distinction मालूम करना है आपको. इतना clear हो गया? Is this much Yes, ma'am. clear, Abhishek? So another, what is the distinction between Yes, ma'am. authority? Yes, एग्जाम ma'am. ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाई करो. मैंने जो